السلام علیکم، اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے بلیٹن میں شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ پاکستان 2018 کا آخری سورج تلخ و شیریں یادوں کے ساتھ غروب، سال کے آخری کو الوداع کہنے کے لیے کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود۔ لاہور، اسلام آباد میں بھی شہریوں نے غروب آفتاب کا منظر دیکھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کے شہریوں کو سال نو کا تحفہ۔ کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر عائد پابندی ختم، نوجوانوں سے قانون کے دائرے میں رہ کر خوشیاں منانے کی اپیل۔ اسلام آباد میں بغیر سائلنسر موٹر سائیکل چلانے پر پابندی۔ لاہور، راولپنڈی میں ون ویلنگ کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ۔ سابق کپتان سرفراز احمد نے شہریوں سے نیو ایئر نائٹ پر فائرنگ نہ کرنے کی اپیل کر دی۔ وفاقی کابینہ نیب آرڈیننس کے معاملے پر ڈٹ گئی۔ نیب آرڈیننس کو وقت کی ضرورت اور اپوزیشن کے شور شرابے کو بے معنی قرار دے دیا۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر 6 ارب کی سبسڈی دی جائے گی۔ ہر شہر میں پناہ گاہیں، لنگر خانے قائم کیے جائیں گے۔ جنوری میں مالی معاونت کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ 2020 عام پاکستانیوں کا سال ہوگا۔ نیب آرڈیننس نہیں، وزیر اعظم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نیب کے ذریعے گزشتہ 1.5 سال میں اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ محمد زبیر کی پریس کانفرنس۔ مریم اورنگزیب نے کہا، نیب ترمیمی آرڈیننس سے ثابت ہوا حکومت ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ سلیکٹڈ حکومت سے کوئی ریلیف نہیں چاہیے۔ لیگی قیادت کی بے گناہی عدالتوں میں ثابت ہو چکی۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی ایم کیو ایم کو آفر کے بعد حکومت متحرک۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومتی رابطہ کمیٹی کا ایم کیو ایم سے رواں ہفتے ملاقات کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کی سربراہی میں وفد ایم کیو ایم سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں ایم کیو ایم کے تحفظات، مطالبات پر بات چیت ہوگی۔ ایم کیو ایم کے گمشدہ کارکنان اور فنڈز کے اجراء سے متعلق بھی بات ہوگی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کل سال کے پہلے دن سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس طلب کر لیے۔ سینیٹ کا اجلاس 3 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے ہوگا۔ (2019) معاشی بدحالی اور کا سال تھا۔ ناقابل برداشت مہنگائی کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر بخاری کہتے ہیں، 2019 میں ملکی خزانے کی کنجیاں IMF کے حوالے کی گئیں۔ روٹی اور ادویات عام آدمی کی پہنچ سے دور کی گئیں۔ کردار کشی، الزام تراشی کی گئی۔ مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں، 2020 اس حکومت کے الوداع کا سال ہے۔ جیالے اپنے قائد کی کہی بات کو حقیقت بنا کر رہیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے 2020 میں سیاسی تبدیلی کا امکان مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں، صرف سال تبدیل ہو رہا ہے اور کچھ نہیں۔ بزدار صاحب کو مشورہ دینے کے لیے راجہ بشارت موجود ہیں۔ شہباز شریف نے 10 سال تک جگہ جگہ سرخ فیتا لگایا، جس کی وجہ سے پنجاب ترقی کے بجائے مزید پیچھے چلا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو بات ہوئی وہ امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی۔ تحریک انصاف حکومت کے 15 مہینے ناکامی کے مہینے ہیں۔ حکومت عوامی توقعات پر پورا نہیں اتری۔ 2020 میں حکومت کا مہنگائی کا ایک اور سونامی لانے کا اعلان مسترد۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں، حکومت نے مسئلہ کشمیر میں بھی عوام کو دھوکہ دیا۔ عالم اسلام کے حکمران مسلمانوں کے نہیں، مغرب کے نمائندے ہیں۔ اسلام کے ٹھیکیدار کشمیریوں کے قاتل مودی کو میڈلز دے رہے ہیں۔
2019 का सूरज गुरूब हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद साल का आखिरी सूरज गुरूब होता देखने कराची में साहिल समुंदर पर पहुंची है। इस हवाले से हम मजीद जमजम सईद से जानते हैं। जमजम, बताएगा, इस वक्त आप भी वहां मौजूद हैं, क्या खूबसूरत मनाजिर देख रही हैं? जी बिल्कुल, साल 2019 का जो सूरज था वो बिल आखिर गुरूब हो ही गया और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है उन्होंने साहिल समंदर का रुख किया है। खूबसूरत मनाजिर जो है अपने कैमरों में कैद किए। इवन कि मैंने भी यहाँ पर भरपूर जो है यहाँ पर खूब सेल्फीज ली हैं, खूबसूरत मनाजिर को कैमरों में कैद किया। तकरीबन अगर मैं न्यू ईयर की बात करती हूँ तो साहिल समंदर पर 9 चेक पोस्ट यहाँ पर कायम है, जहाँ पर 2000 से जायद जो है पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। आतिशबाजी पर यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है, हवाई फायरिंग पर, असले की नुमाइश पर, बगैर साइलेंसर के बाइक चलाने पर भी इवन के पाबंदी जो है आयद की गई है। लेकिन एक खुशखबरी उसमें से ये भी है कि दफा 144 जो है उस पर पाबंदी नहीं है। इसके अलावा डबल सवारी बहुत बड़ी बात होती है, डबल सवारी पर हमेशा जो है पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन इस साल 2020 में जो है डबल सवारी पर पाबंदी जो है नहीं लगाई गई। नौजवान जो है भरपूर खूब इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन होशियार रहे क्योंकि हर चेक पोस्ट पर जो है पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात है। हमारे 2000 से ज्यादा तकरीबन पुलिस एहलकार सिर्फ सी व्यू के मकाम पर जो है तैनात किए गए हैं ताकि प्रॉपर चेकिंग की जाए और चेकिंग के बाद जो है नौजवानों को आगे जो है सी व्यू की तरफ जो है छोड़ा जाए। इसके अलावा सर्दी की मौसम की अगर मैं बात करती हूँ तो साल 2019 में जो है आखिर के दिसंबर था वो सर्द रहा। रवां साल का जो है सबसे कम दर्जा हरारत 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अगर मैं जनवरी की बात करती हूँ, साल 2020 का जो पहला महीना होगा जनवरी में, उसमें जो है दिसंबर से ज्यादा जो है महकमा मौसमियात बता रहे हैं कि ज्यादा ठंड होगी। तकरीबन 3 जनवरी से जो है मगरिबी हवाओं का सिस्टम ईरान से बलूचिस्तान के रास्ते जो है वो दाखिल होगा और कराची में ठंड जो है वो मजीद बढ़ने का इम्कान है। जी शुक्रिया जमजम, आपने अपडेट किया। दीगर खबरें भी शामिल करने बताएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 15 महीने नाकामी के महीने करार दे दिए हैं। कहते हैं 2020 में हुकूमत ने एक और महंगाई का सुनामी लाने का ऐलान किया है, जिससे मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने मसला कश्मीर में भी आवाम को धोखा दिया है। इमरान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। मंसूरा लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। हुकूमत 15 महीने गुजार चुकी, मगर यह मुद्दत हुकूमत के लिए मातम है। 2020 से हुकूमत ने एक और महंगाई का सुनामी लाने का ऐलान किया है, जिसे मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कश्मीर का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि आलमे इस्लाम का है, लेकिन लम्हा फिक्रिया है कि हमने और आलमे इस्लाम ने कश्मीर की मदद का हक अदा नहीं किया। कश्मीर के कातिल को मुस्लिम हुक्मरान मेडल से नवाज रहे हैं। सेंटर सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी का कारकुन सब कुछ होने के बावजूद सोया नहीं। वो दिन जरूर आएगा जब कश्मीरियों का खून रंग लाएगा और आजादी उनका मुकद्दर बनेगी। कैमरामैन मुजम्मिल कामरान के हमरा इमरान भट्टी, लाहौर। अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती का मामला हल करने के लिए हुकूमत को मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह कहते हैं, हम तो तवक्को ही कर सकते हैं कि किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। अगर कायदे हिज़्बे इख्तलाफ और कायदे ईवान किसी एक शख्स पर इत्तफाक नहीं कर सकते तो हम क्या कह सकते हैं। रेहान दश्ती की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती से मुताल्लिक लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से दायर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत की। विफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान से मेंबरान की तैनाती का मामला हल करने के लिए अदालत से मजीद मोहलत की इस्तदा की। लीगल एडवाइजर कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ यूसुफ जई ने अदालत को बताया कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज हुआ था, ताहम धुंध की वजह से कुछ अरकान इजलास में शिरकत नहीं कर सके। इससे कबल कायम कमेटी के बनाए गए रूल्स मौजूदा हालात में काबिल अमल नहीं है। 10 दिन की मोहलत दे दें, इंशाअल्लाह आइंदा समाअत पर अच्छी खबर देंगे। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जो कमेटी अभी काम कर रही है वो अपने रूल्स खुद बना सकती है। रूल्स में तब्दीली कमेटी का इख्तियार है। अदालत तो तवक्को ही कर सकती है कि किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। अगर कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसी एक शख्स पर इत्तफाक नहीं कर सकते तो हम क्या कह सकते हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को मजीद 2 हफ्तों की मोहलत देते हुए समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख समेत दीगर जजेस ने शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान के रिटायरमेंट के मौका पर उनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद किया गया। आफान रियाज की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद हुआ, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मामून रशीद शेख, जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और जस्टिस शुजात अली खान समेत लाहौर हाई कोर्ट के दीगर जज साहिबान शरीक हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस शमीम खान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट एक तारीखी इदारा है जो अवाम को बेहतरीन इंसाफ फराहम करते हुए बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अदलिया बतौर इदारा इस बात की ज़ामिन है कि शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ शदीदी बनाए। जब तक अदालतें अपने इन फ़राइज़ को कामयाबी से अदा करती हैं, किसी भी माशरे में जबर और इस्तादाद को फ़रोग़ नहीं मिल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अदालत लाहौर इस तवाज़ुन को बरकरार रखे हुए है। चीफ जस्टिस का कहना था कि नामजद चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख एक काबिल और मिसाली शख्सियत हैं। जस्टिस मामून रशीद शेख अपनी भरपूर कायदाना सलाहियतों की बदौलत इस अदारे के वक़ार में मजीद इजाफे का बायस बनेंगे। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मामून रशीद शेख ने अपने खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने बेहतरीन इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा किया। बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वो आला अदलिया और ज़िलाई अदलिया में काबिल अमल इस्लाहात लाए। अफान रियाज लाहौर अब तक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि वालिदैन बच्चों को मनशियात की लानत से बचाने के लिए उन पर कड़ी नजर रखें। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से मनशियात नजरियातिश की। हुक्काम ने तालीमी इदारों को मनशियात के नुकसानात के हवाले से आगाही फराहम की। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की सुपर हाईवे रेंजर शूटिंग क्लब में मंशियात नजर आतिश करने की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में आरिफ अलवी ने मंशियात की रोकथाम और वालिदैन को बच्चों पर कड़ी निगाह रखने की हिदायत की। आरिफ अलवी ने मंशियात की रोकथाम के लिए इमाम मस्जिद और उलमाए कराम की भी मदद तलब कर ली। इसका माँ बाप अगर अंदाजा रखें तो जल्दी कैचअप किया जा सकता है। अगर जल्दी कैचअप कर लें तो रिहैबिलिटेशन में चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर कैचअप हो साल भर बाद या 1.5-2 साल बाद तो उसके रिहैबिलिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। हमारे उलमा का भी बहुत बड़ा काम है नारकोटिक्स में भी और माशरे के ऐब ख़त्म करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ इदारों का काम है वहाँ मसाजिद का भी काम है। इस मौके पर DGANF सिंध ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ ने कहा कि हमारा आज़म है कि हमने पाकिस्तान को मंशियात से पाक करना है। ताजिर बिरादरी के ताउन से शहर में मंशियात के खिलाफ रोकथाम में मदद मिली।